اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت میٹھی ہے، بہت رنگین ہے۔ دنیا کو دو کوالٹی اللہ کے نبی نے بیان کیا، بہت میٹھی ہے، بہت رنگین۔ دنیا کو اللہ کے نبی نے میٹھا کہا، اور کبھی آپ غور کرنا، میٹھی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہیں۔ برفی لائے، لڈو لائے، پیڑا لائے، ایک دن صحیح رہے گا، 2 دن صحیح رہے گا، فریز میں رکھ لو ایک ہفتہ صحیح رہے گا، لیکن ایک رہ گا اس کو خراب ہو جانا ہے۔ جو چیزیں میٹھی ہوتی ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جلدی سڑ جاتی ہیں۔ اور فرمایا دنیا ہری بھری ہے، ہر ہری چیز کو ایک دن پک جانا ہے، ایک دن خراب ہو جانا ہے، ایک دن سڑ جانا ہے۔ آج ہرا ساگ ہے، رکھ دو کل کالا ہو جائے گا، آج ہری سبزی ہے چھوڑ دو کل مہکنے لگے گی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی رنگین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بہت شارٹ ٹرم کے لیے ہے، دنیا کی خوبصورتی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے بعد دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، دنیا کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ غور کرو، نبی نے ایک طرف دنیا کا ذکر کیا اور دوسری طرف عورت کا ذکر کیا، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں اگر دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عورت کو رکھ دیا جائے تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے جنم لیا تھا۔ بنی اسرائیل میں پہلا جو فتنہ ہوا تھا عورت کی وجہ سے، یہ عورت کا فتنہ آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں، ہندوستان کے ایسے شہر، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ اب پورے بھارت میں ایک ہوٹل کی کمپنی ہے جس کا ہوٹل بدنام ہے کہ اس کے ہوٹل میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے۔ اس ہوٹل کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمارا ہوٹل سب سے زیادہ اگر کہیں یوز کیا جاتا ہے تو فلاں شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور وہ شہر کون سا شہر ہے؟ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ آپ کی قوم کہاں چلی گئی میرے بھائی؟ آپ کی نوجوان نسل کہاں چلی گئی؟ آپ کے لڑکے کہاں چلے گئے؟ آپ کی لڑکیاں کہاں چلے گئی؟ ارے آپ تو یوسف علیہ السلام کے نقشہ قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا نام کی لڑکی نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی حیت لک۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کا دور نہیں ہے، پولیس کا ڈر نہیں ہے، کیمرہ کا ڈر نہیں ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے سارے دروازے بند کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف جوان بھی ہے، یوسف خوبصورت بھی ہے، عورت بھی بہت خوبصورت ہے، ملکہ ہے اپنے دور، مگر اے میرے نوجوان صاحب، جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، جب دل میں یہ احساس ہو کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے، یہاں جو کریں گے وہاں اس کا پھل پائیں گے، وہاں بدلہ دینا پڑے گا، اگر یہ ڈر دل میں پیدا ہو جائے، انسان زنا نہیں کرے گا، انسان چوری نہیں کرے گا، انسان شراب نہیں پیے گا۔ وہ عورت کہتی ہے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اے زلیخا، تیرے شوہر نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، میرے مالک نے اس گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی نمک حرامی میں نہیں کر سکتا۔ آج رشتوں کی مریادہ ختم ہو گئی، ایکسٹرا میریٹل افیئر
भाग गई फला के साथ, फला की औरत बड़ी नमाजी थी, तहज्जुद करती थी, फला के साथ भाग गई, कोई सब्जी वाले के साथ भाग गई, कोई दूध वाले के साथ भाग गई। एक्स्ट्रा मेरे शादी के बाद शौहर का किसी और औरत के साथ ताल्लुक कायम करना नाजायज तरीके से, और औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना इस समाज में आम होता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये जो औरत का फितना है, इसी फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने निकाह का हुक्म दिया है। फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे अंदर शादी की क्षमता है, बीवी का हक अदा करने की क्षमता है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है, तो तुम निकाह कर लो। जब तुम शादी कर लोगे, निकाह कर लोगे, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, तो निकाह कर लेने से तुम्हारी आंखों की भी हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। और अगर किसी को शादी की ताकत नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा वो रोजा रखे, अपने आप को कंट्रोल करे। निकाह का हुक्म दिया और निकाह की ताकत नहीं है तो रोजा रखने का हुक्म दिया, अपने आप को कंट्रोल में रखने का। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूह के अंदर, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी करा दो। 35 साल की लड़कियां हो चुकी हैं, शादी नहीं हुई। क्यों? हमने जो बैरियर लगा, हमने जो ब्रेकर लगा, इतना डिमांड, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी रकम देनी पड़ेगी। कहीं जहेज की वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कहीं बाप बेचारा गरीब है, बारातियों को खिलाने की उसके पास ताकत नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, और कहीं बिरादरी का मसला है, ज़ात-पात का मसला है, स्टेटस का मसला है कि हम फला बिरादरी को, लड़की फला बिरादरी बनानी चाहिए, हमारा स्टेटस इतना है तो लड़की उसी स्टेटस को बंद करो ये तमाशे। निकाह को आसान करो मेरे प्यारे से। नबी के दौर में निकाह आसान था, बारात नहीं थी, जहेज नहीं था, मंगनी नहीं थी, हल्दी नहीं थी, और नबी के दौर में एक से ज्यादा शादियां भी लोग करते थे। जिनके पास ताकत होती थी, क्षमता होती थी, बीवी के साथ इंसाफ करते थे, वहां एक से ज्यादा शादियां नहीं। आज एक शादीशुदा आदमी 10 औरतों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर ले, उसकी बीवी को इतना बुरा नहीं लगेगा। किसी को बीवी बना के घर में लेके आ जाए, बवाल होगा। हराम रिश्ता हमें मंजूर नहीं, हराम हमें मंजूर है, हराम हमें गवारा है, हलाल हमें मंजूर नहीं है मेरे प्यारे। इसी औरत के फितने से बचने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया, और जिसके अंदर निकाह की क्षमता ना हो, कुरान कहता है वलियस्ताफिफिल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहा, जिनके अंदर निकाह की ताकत नहीं है वो अपने दामन को बचा के रखे, वो लड़की अपने दामन को बचा के रखे, वो लड़का अपने दामन को बचा के। हाँ, अब एक मसला और सुनो, हतिया दिया मसला क्या है? क्या निकाह करना सुन्नत है? क्या निकाह करना फर्ज है? तो उलमा ने लिखा है कि न तो सबके लिए निकाह करना सुन्नत है, न सबके लिए निकाह करना फर्ज है। अगर आदमी निकाह नहीं करेगा, ज़िना में पड़ने का डर है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फर्ज है। अगर कोई आदमी निकाह नहीं करेगा तो उसको अपने बारे में ज़िना का डर नहीं है, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, तो ऐसे आदमी के लिए बेहतर है, सुन्नत है, मुस्तहब है कि वो निकाह कर ले। और अगर इंसान शादी के काबिल ही नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं है, शादी कर लेगा तो बीवी का हक अदा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना हराम है, नाजायज है। अलग अलग कंडीशन में निकाह का मसला भी बदलता है। अगर आप निकाह नहीं कर रहे हैं और आपको ज़िना का डर है तो निकाह कर लो मेरे प्यारे साथियों। और जब आप निकाह का इरादा करेंगे, जरा हदीस सुनिए, अपने कुंवारे भाइयों को ये हदीस सुनाना चाहता हूं, जो बेचारे हमारे कुंवारे भाई। सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम,
तीन लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। ऐ मेरे कुंवारे भाइयों, ऐ मेरी कुंवारी बहनों, जरा गौर से सुनना। तीन लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। नंबर 1, अल अब्दुल ममलूक, वो आदमी जो गुलाम है और अपने मालिक से आजाद होना चाहता है, पैसा दे करके अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला अल्लाह उसकी भी जरूर मदद करेगा। वन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफ़ा, और जो निकाह करके शादी करके अपने आप को ज़िना से बचाना चाहता है, अपने आप को ज़िना से बचाना चाहती है, उस लड़की को, उस लड़का को अल्लाह ताला जरूर उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। निकाह करो मेरे प्यारे से। और ये औरत का फितना, ये ज़िना का फितना इतना खतरनाक है मेरे साथ। अगर इससे अपने दामन को बचा लिया तो कयामत के दिन की गर्मी से अल्लाह को बचा। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग पसीने में बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कयामत दिन अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी, कोई ठंडक नहीं होगी। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो बंदा भी होगा, व रजुलन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिसको कोई खूबसूरत और कोई पैसे वाली, और खूबसूरत भी है पैसे वाली, भाई खूबसूरती की तरफ सब लोग भागते हैं, और खूबसूरती के साथ अगर पैसे वाली हो तो सोने पे सुहागा है। भाई हमारी जो बूढ़ी माएँ जलसे में आई हैं, कैसी बहू तलाश करते हैं। लड़का चाहे अफ्रीका के जैसा दिखता होगा, लड़की बिल्कुल उनको हीरोइन जैसी चाहिए, बिल्कुल हीरोइन जैसी चाहिए, और अपने पास झोपड़ी हो लेकिन लड़की हवेली वाली चाहिए, है कि नहीं? तो दौलत और खूबसूरती जो कमजोरी है इनसे। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि वो आदमी जिसमें कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावतें, ज़िना की दावतें, गलत काम की दावतें, हमारा नौजवान को इंतजार करता है किसी का नंबर मिल जाए, किसी से सेटिंग हो जाए। सोशल मीडिया पर दाढ़ी वाले, नमाज़ी बड़े सज्जद के निशान वाले, 60 साल 50 साल वाले भी लड़की की आईडी देख के कड़वी है बात, मगर सच है। आज सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया। कितनी लड़कियां बाकायदा सोशल मीडिया पे वो जो है ओपन करती है कि फला अंकल ने, बिल्कुल हमारे बाप की उम्र के हैं, 50-60 साल के हैं, वो हमें आकर के प्राइवेट में चैटिंग करते बातें कर रहे हैं। क्या हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। याद रखो, कयामत के दिन की गर्मी से वही इंसान बचे जो औरत के फितने से बचे। नबी ने फरमाया, खूबसूरत औरत बुला रही है, पैसे वाली औरत बुला रही है, और वो जवाब में क्या कह रहा है? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। और इस औरत के फितने से जो बच गया मेरे भाई, उसकी दुनिया की मुश्किलात भी अल्लाह ताला टाल देगा। बड़ी मशहूर हदीस है, हदिया दियारा की जामा मस्जिद में भी कभी आपने जुमा के खुतबे में सुनी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे थे जो सफर में जा रहे, बारिश होने लगी, एक पहाड़ की गुफा में तीनों ने पनाह ली। एक बहुत बड़ी चट्टान आई और उनके गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों परेशान हो गए। तीनों ने आपस में तय किया, बड़ा मुश्किल टाइम आया, बड़ा कठिन टाइम आया, चलो हम अल्लाह से अपने किसी नेक अमल का वसीला लगा के दुआ करें। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि अहले हदीस लोग वसीला नहीं मानते। सुन लो, अहले हदीस वसीला मानता है मगर नाजायज वसीला नहीं मानता, जायज वसीला। अपनी नेकी का वसीला लगाया जा सकता है, अपने नेक अमाल का वसीला लगाया जा सकता है। नबी अकरम ने फरमाया, बनी इस्राइल के 3 लोग गार में फंस गए, तीनों ने आपस में तय किया अपने अपने नेक अमल का वसीला लगाया। उन तीनों में से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी एक कजिन थी, चचा की लड़की थी, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था जितनी एक मर्द किसी औरत से कर सकता है।
अच्छा, एक बड़ा अजीब मामला है। आजकल लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी करा देते हैं। लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी हो जाता है, उनका जो बॉयफ्रेंड होता है वो रिचार्ज कराता है। और मैं समझता हूं ये लड़कियों के गार्जियन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर आपकी जवान बेटी है और उसके हाथ में नया मोबाइल आया तो क्या एक गार्जियन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पूछें कि बेटी तेरे पास ये नया मोबाइल कहां से, तेरे पास ये पर्स कहां से आया, तेरे मोबाइल में मैंने रिचार्ज नहीं करा, किसने रिचार्ज कराया? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अगर गार्जियन हो तो आंखें बंद मत करो मेरे प्यारे साथियों, चौकन्ने बनकर हो एक अच्छे गार्जियन। और ये बात याद रखो, आपके घर में आपके कमरे में लड़की सो रही है और आपको ये लग रहा है कि अकेली सो रही है। नहीं, सोशल मीडिया के दौर में आज वो लड़की सैकड़ों लड़कों के बीच में सो रही है। आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा। तो ये नकली मोहब्बत में क्या होता है? लड़का रिचार्ज करा देता है, लड़का कुछ पैसा दे देता है, नया मोबाइल दे देता है। मकसद प्यार नहीं है, मकसद मोहब्बत नहीं है, मकसद उस लड़की की इज्जत के साथ खेलना है। अरे जिसको मोहब्बत होती है वो जिम्मेदारी उठाता है, वो निकाह करके घर में लाता है, बीवी बनाता है, और जब वो बीवी बनती है तब आदमी उसकी हर जरूरत पूरी करता है। जो शादीशुदा लोग हैं पूछ लो, कभी दूध ला रहे हैं, कभी सब्जी ला रहे हैं, कभी गोश्त ला रहे हैं, कभी जो है प्याज ला रहे हैं, कभी टमाटर ला रहे हैं। अरे ये तमाम झंझट उठाने का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत आदमी शादी करने के बाद ये मोहब्बत इंसान को। एक बादशाह ने ऐलान किया कि भाई हमारे दरबार में, हमारी हुकूमत में जो आदमी अपनी बीवी से डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए, और जो आदमी बीवी से नहीं डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए। लाइन लग गई, लंबी लाइन। अब एक लाइन में पूरी लाइन भरी हुई है जो बीवी से डरने वाले लोग, और दूसरी लाइन में एक आदमी सिंगल है। बादशाह बहुत खुश हुआ। चलो भाई, मेरी हुकूमत में, मेरी जनता में, मेरी पब्लिक में कोई तो है जो बीवी से नहीं डरता। कहा कि हाँ भाई बताओ, तुम ही वो बहादुर हो जो बीवी से नहीं डरते हो। कहा कि अरे बादशाह साहब, मेरी बीवी ने कहा था कि जिस लाइन में मैं तुमको खड़ा कर दूंगी मेरी इजाजत के लिए। अब जब तक बीवी से पूछ नहीं दूंगा मैं कैसे? तो बादशाह ने कहा कि भैंस मानी नहीं, बेचारा बीवी से डरने वाला। तो मोहब्बत ये होती है मेरे भाई, बीवी का फोन आता है, आदमी की आवाज, वो मोहब्बत थोड़ी है जो बंद कमरों में की जाए, जिसको छुपाना पड़े। नाम कुछ है और मोबाइल पर नाम किसी और नंबर के साथ सेव किया जाए। कोई चार्जिंग स्लो के नाम से मोबाइल पर नंबर सेव करना है, कोई जो है माई डॉल, माई सोना, माई क्वीन, माई राजा, माई रानी, क्या क्या नाम से सेव कर। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पे हवस है, नष्ट है। नबी अकरम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अगर गर्मी से बचना है तो वो इंसान बचेगा जो औरत के फितने से बचेगा। वो आदमी कहता है अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था, उसको हासिल करना चाहता था। अरे अल्लाह, एक मरतबा सूखा पड़ा, कहत पड़ा, वो लड़की मजबूर होकर मेरे पास आई, मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। मैं पैसे वाला था, मैंने 100 दीनार उसको देने का वादा किया। मैंने कहा मैं 100 दीनार तुझको दूंगा, मगर एक शर्त पर दूंगा, तुझे अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी पड़ेगी, तुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। लड़की बेचारी मजबूरी में तैयार हो। बुखारी के अल्फाज, लड़की बेचारी मजबूरी में तैयार हो, और अरीबना जब लौटा अपनी कजिन के साथ ज़िना कर रहे, ऐन मौके पर लड़की ने कह दिया इत्तक़िल्लाह, ऐ मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डरो, वला तफ़ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज का तुझे अधिकार नहीं है, जिस चीज का तुझे राइट नहीं है, जिस चीज का तुझे हक नहीं है, उस चीज को यूज मत कर, उस चीज को इस्तेमाल मत कर। मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं तेरे निकाह में नहीं हूँ, मेरे साथ इतना गलत काम मत कर। उस मौके पर उस लड़की के मुंह से जब तेरा नाम मैंने सुना, मैं कांप गया। ऐ अल्लाह, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मैंने 100 दीनार उसको दे दिए, और मैंने कहा जा तुझे और मदद चाहिए तो ले लेना। ऐ अल्लाह, अगर क्या मैंने तेरे
इस मुसीबत से हमको नजात दे दे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान की इस नेकी की वजह से उस मुसीबत को दी। और कितना इतना खतरनाक फितना है मेरे प्यारे साथियों, अगर इससे अपने दामन को बचाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की परेशानियों से भी आपको नजात देगा। इसी औरत को फितने से बचाने के लिए इस्लाम ने हमें और आपको अपनी निगाहों को नीचा रखने का हुक्म दिया। जलसे में आप जा रहे हैं, लड़कियां भी वहां से गुजर रही हैं, ठीक है, लड़कियों की बेपर्दगी पर भी बहुत बातें हो रही हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, शायद मौलाना गरजी साहब कुछ बोलते हैं उसको। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया है? कोई भी लड़की जा रही है, आपको अपनी निगाहों को नीचे रखना है। फरमाया ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। याद रखो मेरे भाइयों, जब तक आप निगाहों की हिफाजत नहीं करोगे, शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते। अब निगाहों की हिफाजत कितनी हो रही है? ये आपके मोबाइल के ब्राउजर की हिस्ट्री बताएगी, ये आपके यूट्यूब की वॉच लिस्ट बताएगी। आप क्या देखते हैं, फेसबुक पर आप क्या देखते हैं, इंस्टा पर आप क्या देखते हैं, यूट्यूब पर आप क्या देखते हैं। आपका मोबाइल इस बात का गवाह है कि आप अपनी आंखों की हिफाजत कितनी करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल-ऐनान ज़िनाहु अन-नज़र, आंखों का ज़िना ये है कि गलत चीजों को देखा जाए, वल-उज़नानि ज़िनाहु अल-इस्तिमा, और कानों का ज़िना ये है कि गंदी चीजें सुनी जाए, गाली गलौज सुना जाए। इसी बिहार के कई यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं, मैं तकरीरों के चैनल के नाम पे कॉमेडी चैनल और मुसलमान लोग चला रहे हैं, और कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता, गाली गलौज, वाहियात चीजें पेश करते हैं। हमारे यूपी में संभल एक जगह है, वहां की दो लड़कियां महक और परी, वो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर गंदे गंदे कंटेंट डालती थी, पुलिस ने भी अरेस्ट किया। हम कहते हैं मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, फला जुल्म कर रहा है, कभी हम अपने गरेबानों में झांके हम कितना जुल्म कर रहे हैं, अपने नफ्स पर हम कितना जुल्म कर रहे हैं। हम क्यों मौका देते हैं दूसरों को? हमारा दीन तो हमें अपनी निगाहों की हिफाजत का हुक्म देता है, और हम बैठ करके सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैला रहे, गंदगी फैला रहे। याद रखो, गंदा काम करना पाप है, लेकिन गंदगी को फैलाना महापाप। ये यूट्यूबर भाई हमारे बैठे हैं, बड़े एहतराम से कहना चाहते हैं, व्यूज हासिल करना है तो और तरीका अपनाओ, गंदे थंबनेल न लगाओ। मौलाना ने लिपस्टिक पर बोला तो लिपस्टिक लगी लड़की की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है? मौलाना ने प्यार मोहब्बत पे बोला तो किसी लड़की की तस्वीर थंबनेल में लगाने की क्या जरूरत है? ये आप गलत कर रहे हो। और कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु बिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, अश्लीलता को फैलाना चाहते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। ये जालिम हुकूमतें, ये जालिम हुक्मरान, ये भी कहीं ना कहीं हमारी बदअमलियों की सजा होती है। दुआ करो अल्लाह हमें जालिमों से हिफाजत हमारी करे। अल्लाह इस मुल्क का, इस स्टेट का, इस सूबे का इक़्तिदार अमन, चैन और इंसानियत पर चलने वालों के हाथ में दे। अल्लाह जालिम के जुल्म से सबकी हिफाजत करे। मेरे प्यारे साथियों, और फितना एक ऐसा फितना है, अल्लाह के नबी ने इससे बचने पर जन्नत की गारंटी दी। जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन अगर मैं तकरीर में कहूं कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं तो आपको लगेगा यार अब्दुल गफ्फार साहब बोल रहे हैं तो बात बड़ी पक्की है। आपके गांव के इमाम साहब हैं, मोहल्ले के मौलवी साहब हैं, गांव के आलिम साहब हैं, अगर वो किसी चीज की गारंटी ले लें, आप कहेंगे यार आलिम की जबान है, गलत तो नहीं। और जब नबी किसी चीज की गारंटी ले, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़मनु ली सित्तन अज़मन लकुमुल जन्नह, 6 चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। हटिया दियारा वालों आसपास से आए मेरे भाइयों मेरे बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी 6 चीजों की गारंटी लेने पर जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। फरमाया उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम,
جب بات کرو تو سچ بولو۔ آج میں کٹیہار میں سادل پورے گاؤں ہے وہاں گیا، ایک بھائی کے ہاں ناشتے کی دعوت کی، وہاں گیا تو ان کے والد سے میں نے پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب میں نے حج تو نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اچھا پیسہ کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کہا کہ مولانا صاحب حج کرنا آسان ہے، حج کر کے نبھانا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ بولے ہم حج نہیں کرنے جائیں گے۔ میں نے کہا چاچا آپ گنہگار ہو جائیں گے، اگر نمازی نماز پڑھ کے بیڑی پی رہا ہے، نمازی نماز پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہے، نمازی نماز پڑھ کے 420 کر رہا ہے، تو کیا آپ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے اور صحت ہے، حج کر لیجیے میرے بھائی، حج کر لیجیے۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کتنے بوڑھوں کو حج کر سکتے تھے، عمرہ کر سکتے تھے، دولت تھی، صحت تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، ٹائم نکل گیا، کسی کو فالج نے مار دیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، آج بیچارے بیٹھ کے رو رہے ہیں کاش میں نے ٹائم سے حج کر دیا۔ اصدقوا اذا حدثتم، اے حاجیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی حج سے بھاگ رہا ہے، اے نمازیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی نماز سے بھاگ رہا ہے، تم اگر نمازی ہو، تم اگر حاجی ہو تو تمہیں تو اور زیادہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، وَإِذَا وَعَدتُّمْ فَأَوْفُوا، اور جب وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ۔ وعدہ نبھاؤ یہ الگ بات ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے وعدہ پورا نہ ہو سکے انسان، ہم ہی لوگ جلسے میں ٹائم دیتے ہیں کبھی کبھی نہیں آ پاتے، اور کہیں کہیں اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہتے مولانا صاحب اس گاؤں میں مت آئیے گا لوگ ماریں گے آپ کو، کہیں ٹائم سے نہ پہنچو تو وہاں کا عالم جو کل ابھی شیخ حضرت کہہ کے بات کرتا ہے، واٹس ایپ پر اس کو میسج کر کے کہتا ہے کہ مولانا آپ کو ہمارے جلسے کا ہرجانہ دینا پڑے گا، آپ ہمارے جلسے میں لیٹ آئے، ہمارے جلسے کا نقصان۔ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں بھائی، ایسے لوگ بھی ہیں۔ عبدالغفار صاحب آ جائے تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی ناشتے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو ذرا سا پیچھ ہو جائے تو دھمکی دیتا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دیں گے، بدنام کر دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ انسان وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ نہیں نبھا پا رہا ہے تو انسان کے ساتھ مجبوری آ سکتی ہے میرے پیارے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا تُمْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے فَأَدُّوا، تو امانت صحیح جگہ دے دو۔ مسجد کے متولی ہو، مسجد کا پیسہ ہے، غلط جگہ یوز نہ کرنا۔ مدرسے کے ناظرین ہو، مدرسے کا پیسہ ہے، قوم کی امانت ہے، اپنے ذاتی استعمال میں نہ لانا۔ یتیم کھانا چلا رہے ہو، یتیموں کا پیسہ ہے، اپنے پیٹ میں نہ ڈالنا۔ امانت ہے مدرسے والوں، امانت ہے یہ مدرسے، مسجد والوں امانت ہے یہ مسجد، اس قوم کی امانت ہے۔ خبردار ایک پیسہ بھی بغیر اجازت کے اور بغیر ادھکار کے بغیر حق کے اپنے اوپر خرچ نہ کریں۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ جی میں دیکھ رہا ہوں، میں گھر جاتا ہوں۔ اچھا چلیے اللہ کے نبی فرما رہے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ، اور امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو۔ اور بات امانت کی آئی ہے تو سن لو ہتھیار پیارا والو، باپ کے کندھے پر بھی امانت ہے بیٹی، اولاد بھی امانت ہے آپ کے کندھے پر، میری ماں اور یہ جوان بیٹیاں امانت ہے آپ کے گھر گھر میں۔ اس امانت کی بھی قدر کرو، اس کے بارے میں لاپرواہی مت کرو ورنہ اللہ کے یہاں بہت پچھتانا پڑے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ۔ اور چھٹی چیز وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے دور رکھو۔ اب یہ بھائی بولنے لگا کہ ہمارے شیخ صاحب آدمی میں بولے ہسوا نکال دیں گے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی میں نے سنا تھا کہ شیخ صاحب آدمی اگر 10 سالہ بولے تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔
तो ये जज्बाती लोगों की निशानी है। आप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा कीजिए, आपके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आज मन का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, सूबे का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मौलाना बिहार के हालात बहुत अच्छे हैं, यूपी के बहुत खराब है। हमने कहा बकरे की माँ ज्यादा दिन तक खेलता है। आप दुआ कीजिए अल्लाह आपको आफियत दे, दुआ कीजिए मेरे भाइयों, वरना आपकी बर्बादी की दास्तानें कहां कहां और कैसे कैसे लिखी जा रही है शायद आप जानते। ये ज्यादा खुशी न मनाइए कि फला जगह ये हो रहा है तो हमारे साथ नहीं। बिहार से बहुत दूर नहीं है आसाम की सरजमीन, किसको बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया, किसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, आप क्या कर सकते हैं? इसलिए बहुत नाक कान आंख दिल दिमाग सब खोल करके रखें।